ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਂਘ ਜਾਗੂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। और ये दिवाली है जो अज दे दिन ये त्योहार रूप विच आई है। इसनूं सिख ते मनांदे ही ने, हिंदू मनांदे ने, जैनी मनांदे ने, बोधी मनांदे ने। एक तबका नहीं। इस देश विच वड्डे 4 धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारे ही दिवाली मनाते ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां ये कोई त्योहार है जो चारां दा सांझा है, बाकी सारे त्योहार अपने 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 ढंग नाल वख वख धर्म मनाते हैं। ये इको ही त्योहार है, सनातनी, जैनी, बोधी, सिख सारे ही मनाते हैं। इत्थों एक गल स्पष्ट आउंदी है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बोधी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बोधी और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बोधी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा। संसार ते रोगी है, ते संसार दे सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां 4 धर्मां तो इलावा हिंदू, सिख और जैनी, बोधियां तो इलावा
ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਲਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਕਾਰ ਬਾਲੀ, ਬਾਲਿਕਾ ਵਰ ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ। 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। तो महाराज कहते मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भकार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा रोग अंदर सीमा दे च होवे ते असीं कहंदे आ ये बंदा तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त नहीं है। रोग सीमा दे च अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग पिया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है बेदन। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई।
ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान, दूजा अर्थ इसका है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द, शब्दकोश दे ਇਹਦੇ अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है, पीड़ा करके पता चलता है। जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा है, जो समझ इस सिर दी है। अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखण लग पिया है, ते इंज लगता है जिवें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। ज्ञान किसदा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, ओदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है, चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहंदे ने। ध्यान सिर दे पे है, क्योंकि सिर दुखदा पे है, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता, मूंह दे च दंद हैन भी सही के नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, और कुछ भी। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ और कुछ भी नहीं हाँ। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ विच अखां ही घुमदियां रहिंदियां, सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हाँ और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है, फिर सारा ज्ञान भी पेट दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इको ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी है। जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक दे च कीता है। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन। सुनाओ, मैनू अजे तक याद है, ये पदा सुनाओ
शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना नहीं ते नहीं। परमाद पुरख मनो पिमन सत आद भाव रतन परमद भूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्व गतन केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है। परम आद इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग परम अद्भुत, ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत इहदे च भी अड़ा कढ़ दिता है, एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आदि भाव रतन परमद भूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्व गतन केवल राम नाम मनो पिमन बद अमृत तत्वमयं। इस तरह संस्कृत भाषा की यह खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे विच बयान ना करके इक्को ही बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेदन ज्ञान विद्या, ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग दी गल इतने लंकांदे ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द, हुण महाराज कहंदे ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उन्होंने सोग कहंदे ने, चिंता सोग। जो कोल से चला गया उदा शौक है, जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है। चिंता है, मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल से होते चला गया, आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त आज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार किसी वक्त तो अजीज मित्र है से ही आज नहीं है, आज नहीं है। तो आज नहीं है उदा सोग है, सोग। आज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है, ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच।
तन दे ते हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते एक होंदी है, रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहिंदे ने। रोग हजारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है, फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करां, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया, सीमा विच, सीमा विच। रोगी सारे ही ने। सतगुरु दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब को है। सारे चिंता तुरने, सारियां दे अंदर सोग भी है। सारियां कोल शरीरक तौर ते भी रोग ने, सारियां कोल मानसिक तौर ते भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी है। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, आज नहीं है। मां है सी आज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने, बिरध ने, परसों मां नू याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। होया पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नू किधरे अचानक चोट लग जाए मुंह निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता है। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है। सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मां माई धन पायो हर नाम। मन मेरो धावनते छुटक्यो कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी ने मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधरे एक शब्द किधरे दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंह निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए,
याद विच आ जाती है मां, ते खुशी मां नूं दसी है, पहले मां नूं दसी है, माता नूं दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है, 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के, दुध की है खून चो ही बनता है और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दी है। तो बच्चे दे 90% मां ही आती है, ਉਹਦੇ शरीर दे ਉਹਦੇ मानसिक मंडल दे मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, वड्डी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई, हर थां थे मां, जगह जगह मां नूं याद कीता। खुशी समय भी पत्नी पति भरा भैन पुत्र बाद दे याद आउंदे, मां पहले याद आउंदी, पहले याद आउंदी। दुख, बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां। और गजब की गल यह, दुनिया दियां सारियां भाषावां विच मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने, बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे। उत्थे मदर कह देंदे ने, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कहते हैं। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब दी उच्चारण कीतियां कुछ आयतां दा टीका पढ़ रहा सी, तर्जमा, जो देवबंद इस्लाम दा बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उत्थों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझांदे हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। इस तरह कहंदे ने। और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। सुते से इस बावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां ऐसी चली गई, पिता ऐसी चला गया, भरा ऐसी चला गया, गुरु ना करे, संतान ऐसी चली गई, नहीं रही, मित्र ऐसी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता, सोग ते चिंता।
कितने मनां दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहंदे ने चिंतत ही दिसे सब को सारे। कितने क तनां दे च रोग होवेगा, जो जो दिसे सो सो रोग। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाए भदार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो काम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुविधा दे चाहती है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं है। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग जो मैं चाहना मेरे को होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मत ना होवे, ना मिले। चिंता, सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगे, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ, पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख दा कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख दा कारण मन दा अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान देखते मन भटकता है, ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लेंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है तो अंधेरे ते तन भटकता है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन दी रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा,
संसार ते अंधेरे दे च है। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन दी लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो ओदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक वस्त अगोचर लईए, दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा? दीवा भले अंधेरा आ जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया, चला गया। इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी दा समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करदा है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनदा है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी? अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देंदा, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देंदी, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे च ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देंदा तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देंदी, प्यो भी नहीं दिखाई देंदा, दादा भी नहीं दिखाई देंदा, नानी भी नहीं दिखाई देंदी, भैन भी नहीं दिखाई देंदी, धी भी नहीं दिखाई देंदी, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा है। फिर आ नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है, भरा नहीं दिखाई देता। ऐसियां अखबारां खबरां आ जांदियां ने फलाने ने प्यो दा ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखण नूं भी मिले, तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है।
ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਅਮਾਵਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਛੱਡਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ 8 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋ ਬਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਤੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਰੈਨ ਅੰਧਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकराना है। दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ
सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। कोई दुख नहीं है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जेते ही जीता है, जेते ही जीता है। दुख ना ही आम सज्जणा नूं लगेगा ते दोवें विरोधी बचन है। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने, जो जो दीसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है, दुख ना ही है ही नहीं, दुख ना ही सब सुख ही है रे। हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे। एका एक ही नेते, ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असीं ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है ते ये गलत है। सारी जिंदगी असीं यही ते निर्णय करते रहंदे हां। पर महाराज कह रहे ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे। एका एक ही ने थे, उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पिया है, उस एक दी समझ चलदी पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे। कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जेते जीत है, जेते जीत है। और मैं फिर दोहरावा, दुख है, दुख है तो दुख दा कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा, निवृत्ति दा साधन भी है, निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पड़ेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा दुख है, दुख है, दुख है, और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इदा कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, ना समझी करके दुख है। निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है। ये सानू कोई उद्यम उपराला करन दी लोड़ नहीं भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी, आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आते हैं। रात दिन दे च बदल जाती, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत तरद्दद करन दी लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करन दी लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करन दी लोड़ नहीं। पर ज्ञान दा दीपक बालन लई ते कुछ करना पएगा। अपने आप नहीं होवेगी, अपने आप हो जाती ते हुण तक हो जाना सी। कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी मारो।
ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਛਾਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ। ਕਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझदे नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, जेड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पेगा, उस दीवे नूं आप जलाना पेगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलता। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ते दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, कलकत ये नहीं आती, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है, सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगेगी। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए, तो प्राकृतिक है। उस रोग नू, उस सोग नू मनुख ने स्वयं जन्म नहीं दिता। बाकी रोग, बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किया है। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करदा है, क्यों गई? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिवें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, तो याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग, जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, किसी चीज जिंदगी व्यतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा। इहदा खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर तुहानू सुनावा। वो कहंदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किड़े चक्कर च पे माई होन हार सो होई है, ये तो होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है बिछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टूटदे ने, ये तो होंदा है, ये तो होंदा है। माई होन हार सो होई, ये तो होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा, उन्होंने होण दे और होवेगा। तेरे रोकण नाल भी नहीं रोकना। हाँ, तू मन नू सोगी कर सकता है, कर सकता है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होन हार सो होई है। अगर तेनू मिलना होवेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होवेगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालबत दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नू मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नू मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे रोगां नू मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ, वो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। वो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। ना उस तो रोग आमदे ने, उते नमो रोग हरता, उते रोगां नूं हरण वाला है।
नमो रोग हरता नमो राग रूपम। होते राग रूप है, आनंद है। होते रोगां नूं हरण वाला है, होते रोगां नूं नाश करने वाला है। फिर मैं रोगी क्यों हाँ? मैं तत्तां दा संतुलन बिगाड़ दिता है। मैं शरीर दे नियम नूं समझण दी कोशिश नहीं की थी। शरीर बकायदा नियम पूर्वक सी, मैं इहनूं बेनीमी नाल वरतदा रहा। मन दे सोग ते चिंता है मेरा, अज्ञान मेरी ना समझी। रोग ते सोग लई प्रभु जिम्मेवार नहीं, मैं जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार। मेरे कोल आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दित्ती हुई है, ये उहदी बख्शिश है, ये उहदी रहमत है। पर मेरे कोल रोग ते सोग है, इहदा करता धरता मैं हां। अगर इहदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख दा मूल कारण अज्ञान अंधेरा है। ये फिर अंधेरा किवें जाए? बाहर भावें चानना है, मनुख दी मर्जी अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे, चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकदा है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, रोशनदार ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, बारियां भी खड़कांदियां रहणगीਆਂ, किरणां सब जगह छूणगीਆਂ। कोई रस्ता मिले अंदर जाने का, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी। पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगीਆਂ, खड़ियां रहणगीਆਂ। मैनू कहण देना, कहने भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाजा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा से, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलदे ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदा है। इसे तरह बिलड़ी ने कदी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी दा दरवाजा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा। पर खटखटा रहे हैं, ये प्रतीक ने बड़े सोहने। पिलनी बोलती है, कौन? आवाज आई, राम राम, बुआ खोल। यकीन जानो, हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रहीआं ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रहीआं ने, दीवारां तक नूं भी छू रहीआं ने, कोशिश करदियां पईआं ने शायद छत दे राही कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रहे, सारे मकान ते पै रहे हैं, किधरों कोई रास्ता मिले प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की ते पूरी कोशिश है कोई मनुख रास्ता देवे तेनू सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे, किसे लई ते बुआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਨਵਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਗਰ, ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, शरीर करके भी कमजोर, धन करके भी कमजोर, बुद्ध करके भी कमजोर, कमजोरी ने चारों पासे घेरिया होया है। परमात्मा नूं आवाज मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमजोर हाँ। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम दा सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है। हे परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे, मैं 2.5 करोड़ बंदियां दा कत्ल करना है, तू आ जाएगा, मैं किवें करांगा। मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कां ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ों का गपला करना है, रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर दे तो मैं किवें करांगा। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना परमात्मा लई सारे रस्ते बंद करता है, नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोग। क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, खुदा लई दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। तुसी आखोगे खुदा लई बूहे बंद कीते जा सकते ने, जे सूरज दी रोशनी लई बूहे बंद कीते जा सकते ने, गुस्ताखी माफ, परमात्मा दे प्रकाश लई भी हिरदे दे दरवाजे बंद किए जा सकते, बंद किए जा सकते। इन्ना वड्डा सूरज 1000 गुणा जमीन नालों वड्डा, सारे ब्रह्मंड नूं चानना देण वाला, कि मैं दावा करा है सूरज भावें तू कुछ भी कर, मैं तेनू अपने कमरे च नहीं वड़न देना। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते ने, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे बच्चे नो मां तरले लेके मनांदी है। जैसे रुसे बच्चे नो प्यो तरले लेके मनांदा है, और रुसदा भी ओही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कभी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं तो नहीं रुसदे, तो नहीं। मेरे ते भी किसी ने कुदरती पूछ लिया सी, जन्म साखी पढ़दे आ कि जगह जगह ते मरदाना रुस क्यों जाता है। मैं कहा मनाण वाला है, गल सारी है, कोई मनाण वाला है। मान करके रुसदा मेरे मां बाप हैगे ने, मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरा सतगुरु मेरे नाल है, रुस पैंदा है, और सतगुरु मनांदे ने, समझांदे ने। यतीम बच्चे नहीं रुसदे होंदे, गुस्ताखी माफ कहण देना, कदी बेवा नहीं रुसदी होंदी, मनाण वाला ही नहीं है कोई। कोई मनाण वाला होवे ते फिर मनुख रुसदा है। दरवाजे बंद कीते ने, हर एक दे हिरदे दे द्वार ते परमात्मा खड़ा है, कोई दूर नहीं है, कोल खड़ा है। हर एक दे दरवाजे ते किरणा दस्तक दे रही ने, कोई सूरज दूर नहीं, दरवाजा बंद। पर इतनी ते खुशकिस्मती है, सूरज दियां किरणा लई मनुख दरवाजे खोल लैंदा है, परमात्मा दे गुणा रूपी किरणा लई मनुख हिरदे दे द्वार नहीं खोलता, नहीं खोलता। जिवें सूरज किरणा दे राही चानना वंडदा है, परमात्मा गुणा दे राही हिरदे दे प्रकाश करदा है। हर गुण
प्रभु रूपी सूरज दी किरण है, सब गुण तेरे मैं नाई को, गुण सारे ही उसे देने। किसी को एक दो गुण ने तो समझ लेना किसी दीवार दे कोई छिद्र सी, कोई सुराग सी, उदों कोई किरण प्रवेश कर गई। एक दो गुण ने किधरे इसने रोशनदान खोल देता है तो गुण थोड़े जिहा वध गए ने। कदी कदाई जिसनों असी भगत कहने आ, संत कहने आ, उते सारे ही दरवाजे खोल देंदा, सारियां बारां खोल देंदा, सारे रोशनदान खोल देंदा है। हे प्रभु तेरा स्वागत है, तू हर पासे तो आ। परमात्मा गुणां दा सागर है, फिर संत भी गुणां दा सागर बन जाता है, भगत भी गुणां दा जो है सागर बन जाता है। दरवाजे खोलन तो हुण मुराद, क्योंकि ये गल भी पकड़ दे समझ दे च आ जाए। प्रभु द्वार ते खड़ा है ते दरवाजा खोलिए, चिंता दे चांसी चिंता अंधेरा है, सोग दे छांसी सोग अंधेरा है। किवें दूर होवे चिंतत ही दी से सब कोए, चेते एक तहीं सुख होए। उस एक नू चेते करे, बस चेते करदे दीवा बल जाएगा। चेतियां करदे ही जिसनू चेते करना है वो प्रवेश कर जाएगा। वो ते महासूरज है, ओदियां किरणां प्रवेश कर जाणगे। कहंदे ने चेते शक्ति जितनी दूर तक जा सकती है, इतनी और कोई चीज दूर तक नहीं जाती। और इतनी तेज, जितनी तेजी नाल चिंतन जाता है, इतनी तेजी नाल और कोई चीज नहीं जाती। एक दो शब्दों के आधार पर मैं इसनूं बयान करने की कोशिश करा, भावें समा ते हो गया। अजकल अक्तूबर नवंबर विच कूंजां और कुछ मुर्गा दियां साइबेरिया दे बर्फानी इलाके नूं, हिमालय दे भयंकर बर्फानी इलाके नूं छोड़ के उन्हां इलाकिਆਂ च आ जांदियां जिथे झीलां हैगियां ने, सरोवर हैगे ने। इन्हां नूं छोटियां छोटियां मछलियां ते दाणे खाण नूं मिलण, उत्थे बर्फ पै जांदी है, कुछ भी नहीं मिलता। फिर हजारां मील दी वाट तय करके इंडिया दे इधर भरतपुर दियां उदयपुर दियां झीलां कुछ दरियावां दे किनारे आ जांदियां ने। महाराज उन्हां दा जिक्र करदे ने, उड़ उड़े आवे सैको सा सैकड़े को, उड़ उड़े आवे सैको सा तिस बाछे बछड़े चलिया। ये रुत दे मुताबिक बच्चे देंदियां ने। इन्हां दे बच्चे होंदे सितंबर अक्तूबर दे चले, अगे पिछे नहीं, उन्हां देना चाहते। ऐसा सिलसिला बकरियां ते भेड़ां च भी देखा गया। खैर मुख्तसर महरत करा लमकावा ना। निक्के निक्के बच्चे, अजे उन्हां कोल पंख कोई नहीं, अजे पूरियां उन्हां दी अखां भी नहीं खुलियां, अजे वो उड़ारी नहीं ला सकते। उड़े उड़े आवे सैको सा तिस पाछे बछड़े छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। फिर कौन उन्होंने खिलावे। पंछी आप दाने चुग के लियाते ने ते बच्चियां दे मुंह च पांदे ने, क्योंकि खुद उड़ नहीं सकते, दाने लभ नहीं सकते, खुराक लभ नहीं सकते। बाज भी अपने बच्चियां दे मुंह दे मांस दियां बोटियां लेके आंदा ते पांदा कतरा कतरा करके। चिड़ियां भी इस तरह कर दियां, कूंजां भी इस तरह कर दियां, क्योंकि कुछ बच्चियां दी अजे अखां नहीं खुलियां होंदियां, कुछ बच्चियां कोल ते अजे चलण दी तौफीक भी नहीं आउंदी, पंख ते हुंदे ही नहीं। वो सहजे सहजे वधदे ने, उड्डण योगा बनदे ने। तो हुण इन्हां दी उपजीविका किस तरह चले। मां बाप उन्हां दे दाने उन्हां दे मुंह च पांदे ने, खुराक मुंह च पांदे ने, पर कूंजां ते उड़ के आ जांदियां ने ते खुराक नहीं रहिंदी।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਬਰਫਾਨੇ ਇਲਾਕਾ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਡ ਉੜਿਆ ਵੇ ਸੈਕੋ ਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ? ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲਦੇ, ਆਪੇ ਖੋਲਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, 55 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਡ ਉੜਿਆ ਵੇ ਸੈਕੋ ਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਛਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ, ਕੂੰਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ, ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ। ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀਏ ਕੂੰਜ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਏ, ਚਿਤਾਰਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਏ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਏ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਲਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ। ਧਿਆਨ ਨੇ ਧਿਆਤੇ ਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਇਹ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਧਿਆਤਾ ਮੈਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ। ध्यान इतना गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया है, ध्याता खो गया, ध्याता खो गया, ध्यान भी खो गया, हुण दे रह गई। इतना प्रगाढ़ ध्यान दे रह गई। चितार दिए बच्चे नो, ध्यान उसका चला जाता है बच्चे, खांदी आप पई है, ध्यान दे बच्चा है। ध्यान इतना उसका गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है,
ਖੁਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਛੜੇ ਕੂੰਜ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਚੁਗਦੀ ਪਈ ਹੈ स्वयं ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਤਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਆਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, खैर होवे सही अज फलाने की बड़ी याद आ रही है, अगर याद आ रही है तो फलाना भी याद कर दे। एवं नहीं आती, यादां दो तरफ दी आउंदियां, एक तरफी नहीं आउंदी। बहुत गहराई नाल किसी नूं याद करो, याद पहुंच जाती है, उत्थे ओहदा हिरदा भी याद करन लग पैंदा है। इसे वास्ते भाई गुरदास जी कहंदे तू ते इक्को ही दफा रब नूं याद कर, उहने करोड़ां दफा करना है। तू सिर्फ एक कदम चल, गुरु करोड़ा चलेगा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੋ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਦਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਗ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੂੰਜ ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਛੜੇ ਕੂੰਜ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ, ਸਿਮਰਨ। ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਲੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਨਾਨਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।